2-year work, Okay. and after that, I'm preparing for banking exam, sir. Okay. So after MTech, you are coming here in banking industry. You are specialization in mechanical engineering, right? You have done your MTech in mechanical also. Yes, sir. Okay. So you are so specialized person. You are kind of here. We need graduates. Do not you consider yourself to be overqualified for this job? You can say that, sir, but in practical, if we think about in practical way, at present, engineering, I did MTech so that I can pursue my teaching as a career. Mhm. But as you know, the engineering college continuously closing down. Hmm. I did Okay. work as a assistant professor for 2 years. Hmm. At that time, I realized that there is no further growth for me in that particular sector. Okay. That's why I need a change. And when COVID-19 start, Mhm. there are only few sectors who are continuously working, and one of them is banking sector. Okay. And my father is an ex-serviceman, and after that he joined bank as a security guard. Okay. And So, one thing I would like to obstruct, Mr. Ankit. yes, You have done MTech and you started pursuing your career as assistant professor. Okay. yes, sir. So that is also a respectable job in our society. Why? And you said that you, because of closure of the organizations or educational institutions, you are trying to have a career in banking industry, right? So, Yes, sir. so why did not you try for the government engineering colleges and government like through HPSC, okay, Haryana Public Service Commission or anything, the whatever agency is there recruiting engineers for the government colleges as assistant professor or lecturer. Why did not you try that? Sir, actually, in current scenario, Haryana government recruitment policy take minimum 3 to 4 years, Hmm. and if they recruit, they always get stay on their recruitment. Okay. So, sir, I can't wait continuously for 3 4 more years, Okay. because if I'm not selected in that particular exam, I am unable to do anything else, sir, Okay. So, specifically for government job. so when did you post graduated? In which year? Sir, I did my post graduation in 2017, sir. 2017 until from that 2017 is more than 4 years, right? If you could have tried, you would have in the some government colleges. Sir, there are very less college in government sector, and for that, as per government rule, you need to complete your PhD. Okay. So you done the post graduation means you had the choice of a kind of you had that inherent choice that you wanted to pursue specialization in mechanical engineering, right? Yes, sir. So why did not you then pursued or tried the PhD courses? Sir, there are some senior faculties under which I did my post graduation. Okay. I spoke to them about if I did my PhD, is Hmm. there any possibility for getting a proper good job? Hmm. And after consulting many faculties, I didn't find that pursuing PhD in specifically in mechanical engineering any best beneficial further, sir. So those faculties must have done the PhD also, no? Yes, sir. They are actually, sir. I did my engineering and BTech and MTech from State University, Which Campus State university? University, Which State university? University, sir, Rohtak. Okay. So you did your engineering and all. Okay. Yes, Uh, sir. okay. I'll shift to Mr. Sasank sir. Okay. So that he'll ask some questions and I'll come to you next. Okay. Mr. Sasank sir, please.
repo rate is that rate on which we get loan from RBI. Bank get loan from RBI. And reverse repo rate is that rate when bank submit their excess money to the RBI. At that Excess time, money. they get reverse repo rate. And any idea about Monetary Policy Committee of RBI? Sir, monetary policy have 6 members, 3 from RBI and 3 from government. And Three from their government. chairman is Shantikant Das, जो current governor. Current governor, yes. And one is deputy governor MD Patra sir. MD Patra, sir. And one more sir, I don't recall at that time, at particular this time sir. Okay. Monetary Policy Committee in its last meeting took some important decisions related to key policy rates. Have these rates been changed or they have kept their rate unchanged? What is your They view? keep unchanged sir. Unchanged. Yes sir. Okay. And have you heard about Bharatiya Mahila Bank? Yes sir, it was merged in SBI sir. Okay. Who was the last MD and CEO of that bank, Bharatiya Mahila Bank? Last MD and CEO? I have no information related to that. Okay. Miss Usha Anand Subramaniam was the last MD of that bank. Usha Anand. Usha Anand. Okay sir. Okay. And tell me some few points regarding banking ombudsman. You must have heard about this. Yes, sir. Sir, earlier there are 3 banking ombudsmen, but now they are merged into single ombudsman. Ombudsman. Banking ombudsman is for redressal of the issues faced by the customers, which were not solved by the bank. When customers are dissatisfied by the services of bank, they apply or file a complaint against that to banking ombudsman, sir. So, what is the maximum time period that has been prescribed by RBI to approach Reserve Bank of India in case any grievance or complaint of any customer does not settle? What is the time frame limit? So that's 1 year, sir. That? 1 year. No. It's only 30 days. Okay. If beyond 30 days, any person's complaint is still pending at any of nationalized bank or private sector bank, he have the authority to approach RBI for its redressal. I misunderstand that question, sir. I thought you are asking about ombudsman time limit. No. It's a time limit for lodgement of complaint. Yes, sir. Okay. But tell me, Ankit, few sources of income for bank. Any bank that is functioning in India, its main source of income. The main source of income, sir, it's lending, the credit they provide, from which they get interest. Okay. And is there any third-party business that are presently banks are engaged with? Sir, banca insurance. Bank They insurance. also provide insurance services with the help of insurance agency, sir. No. Ankit, what is the present level of forex of India? What is forex reserve? So it's, Forex reserve? as per I recall, it's nearly 200 crore. How much? 200 crore, in which No. 75 crore is foreign currency and 115 crore is gold. No, it's $630 million. Okay, sir. I will remember that. Convert it into in Indian rupees, it will go much higher than what you have quoted in your answer. Okay. Okay. Ankit, have you any idea about no frill accounts? Yes, sir. Zero account. So, basically, for what purpose banks are insisting on opening zero frill, say no frill accounts? What are the target customers?
Sir, actually, to increase financial inclusion under Jan Dhan Yojana, they open these accounts so that people get financial literacy and get, as it is zero balance account, maximum people are willing to open that. Okay, So okay. that if there is any service, we can, if bank or government any service provide related to PM Jan Dhan Yojana, Mhm. they get benefit from that, sir. Okay. Last year, Ankit, central government finance ministry has released a report, the total report regarding the total number of Jan Dhan accounts in our country. Out of 33 crores account that have been opened in India, what is the number of accounts that has been opened by public sector bank? Sorry, sir. There is no It's information. it's 31.5 approx accounts have been opened by public sector banks. 30 points, sir. 31.5. Remaining has been opened by private sector banks. Okay, sir. I will remember that, sir. Okay. Okay, Ankit. One last question is, tell me the two features of current account. Sir, there is no minimum limit for that, and we get it is generally for businessman persons, and they get, if their credit score is good, they get overdraft facility on that, sir. And also there is no interest on the current account. No, and they are also charging a service charge on quarterly basis on the conduct of these accounts. Okay, Ankit. Wish you all the best. It was all from my side. You have answered almost all of the questions quite good. You Okay. gave your satisfactory reply. I wish you all the best for your future endeavors. So, Sasank sir, you will stay or you will have works and you want to leave? Uh, I will stay. You will stay. Okay, If thank you. you- Thank you. Because I'll have to ask all other questions and regarding his personal and professional profile. Okay, yes. You Fine. can continue. Okay. See. Can you, Sasank sir, can you please mute yourself? Okay, 1 second. Yeah, fine. Thank you. Ankit, I was asking you questions regarding, I had an important call, that's why I left. Okay. So, could you tell me something about Jind? Sir, Jind is one of the oldest city of Haryana, Okay. and it has a mythological significance, as Jind was started from a Jayantri Devi temple. Okay. They were in Mahabharata. They were Pandavas. When Mahabharata, sir, may I speak it in Hindi, sir? Yeah, go ahead. एक्चुअली सर जो जींद है इसकी शुरुआत हुई थी सर महाभारत में, इससे रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं कि उस टाइम पे जब युद्ध होना था, फाइट बिटवीन कौरव्स एंड पांडव्स, उस टाइम जीतने के लिए पांडवों ने यहाँ पे एक मंदिर बनाया था सर, जयंत्री देवी टेम्पल, और वहीं से सर जींद का नाम आया है, ओके। जयंत्री देवी टेम्पल। तो जिंद, हाँ बोलिए। सर यहाँ पे दो प्लेस, एक्चुअली यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बट जिंद इज स्पेसिफिकली नोन फॉर 3 places. First, Pindara, which is nearly 3 kilometers from my home, and it has a significance that यहाँ पे सर जो अमावस्या होती है पिंड दान के लिए, स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल रिलेशन है सर यहाँ पे। कि पांडव ने युद्ध होने के बाद यहाँ पे पिंड दान किया था अपने रिलेटिव्स का, तो मैक्सिमम लोग पिंडारा में
यहाँ पे अमावस्या के दिन बात के लिए आते हैं सर, नहाने के लिए। और सेम सिग्निफिकेंस है सर, एक सी यहाँ से 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे है रामराय जगह है सर। वहां पे कहा जाता है कि जो लॉर्ड परशुराम थे, उन्होंने जब क्षत्रियों का कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया था उनको, तो वहां पे उन्होंने लास्ट रहे थे। तो वहां पे भी जो अमावस्या का टाइम होता है, वहां पे लोग नहाने के लिए दूर दूर से आते हैं। अच्छा। एंड वन इज की destination point, that is Rani Talab, which is at central location of Jind city sir। अच्छा ठीक है, बताइए एक बात कि ये किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में क्या है? ये एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल काउंसिल है, क्या है ये जिंद? सर इट्स अ म्युनिसिपल काउंसिल सर। म्युनिसिपल काउंसिल है, जहां तक मुझे जानकारी थी इस म्युनिसिपैलिटी है ये। आप कॉन्फिडेंट है उस बात पे कि म्युनिसिपल काउंसिल है ये या म्युनिसिपैलिटी है? एक्चुअली सर आई अप्लाइड फॉर माय टैप कनेक्शन, एट दैट टाइम आई सिलेक्ट म्युनिसिपल काउंसिल। ओके, नहीं ठीक है, नहीं वो एक अलग चीज है। हाँ, आपने उसमें सेलेक्ट किया था, ठीक है ना, वो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका ऑप्शन है। बट एज पर रिकॉर्ड्स क्या है, चलिए इसको देख लीजिएगा। एमएलए कौन है वहाँ के? सर ईश्वर चंद मिड्डा सर। ईश्वर चंद मिड्डा की कृष्ण लाल मिड्डा? सर आपके कॉन्स्टिट्यूंसी, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए कौन है? सर किशन सिंह मिड्डा है सर, उनके सन। हाँ वही रिसेंटली सर ईश्वर चंद मिड्डा की डेथ हो गई, तो उनको बनाया गया है। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था। चलिए कोई बात नहीं है। ये बताइए, जिंद डिस्ट्रिक्ट भी है ना? यस सर। जिंद डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? सर जिंद ही है सर, प्रॉपर सिटी। ओके, जिंद प्रॉपर। एक बात बताइए कि जिंद किस डिवीजन में आता है? कमिश्नरेट का क्या नाम है वहाँ? सर सोनीपत डिवीजन में आता है सर। ये सोनीपत डिवीजन में आता है कि हिसार में आता है? एक्चुअली सर सोनीपत जो मेरा नेटिव प्लेस है, आई एम फ्रॉम विलेज भैरोखेड़ा, वो सर सोनीपत डिवीजन में आता है सर। अच्छा, आपका विलेज उस डिवीजन में पड़ता है? यस सर। और ये सर 2 डिवीजन के बीच में आता है सर। जो डिस्ट्रिक्ट है, हाफ पोर्शन इज इन सोनीपत डिवीजन एंड हाफ पोर्शन इज इन हिसार डिवीजन सर। ओके, चलिए, अच्छा है। एक बात बताइए, जिंद का पॉपुलेशन कितना है 2011 के सेंसस के हिसाब से? So sir, I am not able to recall that sir. It's nearly 12 lakh near about sir. 12 लाख? ओके, चलिए कोई बात नहीं। बताइए ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सर ऑफिशियल लैंग्वेज सर यूजुअली यहाँ पे तो हरियाणा ही है सर। हिंदी एंड इंग्लिश आर द मेन ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, हाँ, हरियाणवी रीजनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, चलिए बात बताइए, मैं कुछ पर्सनल बात भी आपसे करूंगा। पर्सनल नहीं, एक तरह से कहें कि ये डिसीजन मेकिंग रिलेटेड मैटर है कि अभी आप क्या करते हैं? आप शादीशुदा हैं, आपने बताया यू आर मैरिड, तो लाइवलीहुड के लिए आप क्या कर रहे हैं अभी? सर ट्यूशन सर। ट्यूशंस करते हैं, ओके। किनको पढ़ाते हैं ट्यूशन? डिप्लोमा स्टूडेंट्स सर। डिप्लोमा स्टूडेंट्स को ट्यूशन, मतलब मैकेनिकल के वाले जो बच्चे होते हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको ट्यूशन पढ़ाते हैं? सर एक स्टूडेंट वो है और 5 स्टूडेंट रीजनिंग सर। रीजनिंग करवाते हैं, ओके। तो रीजनिंग में मतलब आपको आईपीएस पीयू में बहुत अच्छा मार्क्स आया होगा तब तो? नियरली 30 है सर। मतलब आपको नियरली 30 है, मतलब आपका तो स्कोर कार्ड अभी नहीं आया है? सर प्री में था सर। प्री में 30 था, आउट ऑफ हाउ मच? सर 35। 35 में 30 था, चलिए बहुत अच्छा मार्क्स है। चलिए, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने करा है, तो मैं कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं? यस सर। क्या है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? Mechanical engineering is a branch of engineering science in which
we study about various forces which act upon a body Okay. and what are their and their effects, sir. Oh, and their effects. Okay. Yes, sir. एक बात बताइए कि मशीन और इंजन में क्या डिफरेंस हो सकता है? Sir, in a machine, we provide some input and we get by some process we get output. इंटरव्यू में हर 2 मिनट में बात Engine is करते हैं. a power producing device. Yes, yes, tell me. In their main actually, sir, engines is also a type of machines. In engine, we usually get power in the form of power, but in machines we provide some input, and that input, with the help of some process, we get output. Okay. Only for if we speak in detail, that sir, those engines is generally used to generate only power, not other form of forces. But machine, with the help of machine, we get different type of functions. कोई आप अंकित देखिए, आप अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके कंफर्टेबल है तो वैसे ही बोलिए, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है. एकदम आप जिसमें कंफर्टेबल है परफेक्टली वो बोलिए. जरूरी नहीं है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वर्ड्स को हिंदी में बोले, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है ना. मैं भी नहीं बोलूंगा, मैं अगर इन्फ्लेशन बोलूंगा तो मैं मुद्रास्फीति नहीं बोलूंगा, ठीक है ना. तो एकदम परफेक्टली वैसे बोलिए, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे थोड़ा सा, क्योंकि आप हायर डिग्री रखे हुए हैं तो वो चीज आप में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा. अच्छा, एक बात बताइए, पंप और टरबाइन में क्या डिफरेंस है? सर, जो पंप होता है उसमें हम पावर को सप्लाई करते हैं, ठीक है. और टरबाइन से हम पावर जनरेट करते हैं, सर. अच्छा, पावर को सब क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं एनर्जी वाइज बताइए. Sir, in if we speak about pump, from electrical energy to mechanical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है. Yes, sir. ओके. In pump. पंप और टरबाइन में? Sir, in turbine, mechanical energy is changed into electrical energy. ओके. टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है. होती है, sir. ठीक है, कोई बात नहीं. एक बात बताइए, टर्बो मशीन्स क्या होते हैं? सर, टर्बो मशीन्स वो होते हैं जो हम हाइड्रोलिक्स वाटर की हेल्प से रन करते हैं, सर. अच्छा, और दूसरे किसी तरह की चीज को टर्बो मशीन्स नहीं कह सकते, सिर्फ हाइड्रोलिक वाले को कहेंगे. सर, टर्बो मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जिसमें हम मैक्सिमम लिक्विड का यूज करते हैं. और अगर हम स्पेशली अगर हाइड्रो की बात करें तो हाइड्रो मशीन्स में तो हम वाटर यूज करते हैं, और टर्बो मशीन्स में हम एयर, एनी टाइप ऑफ लिक्विड हम यूज कर सकते हैं, सर. या कह सकते हैं हम एनी टाइप ऑफ फ्लूइड, क्योंकि हम गैस को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, सर. अच्छा अच्छा, ठीक है. एक बात बताइए कि थर्मोडायनेमिक्स की जानकारी है आपको, पढ़ा होगा आपने? यस, सर. बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस होता है? सर, जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स होती है वो हम यूजली क्लोज सिस्टम पे ही वर्क करते हैं, सर. ओके. और जितने भी लॉज हैं वो हम सारे के सारे इसी में ड्राइव, जो बेसिक लॉज हैं वो हम इसमें सिर्फ ड्राइव करते हैं, सर. लेकिन जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स होती है उसमें जितने भी लॉज हमने ड्राइव किए हैं उसको हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं, सर, उनका. ओके ओके. अच्छा अंकित जी, आपने कहा कि आपकी हॉबी कुकिंग है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बैठ के बात करनी है. ग्रैंड पेरेंट्स से बैठ के टाइम स्पेंड करना हॉबी कैसे हुआ? ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको एक क्वालिटी टाइम दें, उनके साथ स्पेंड करें, उनको अकेला ना फील होने दें. ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हॉबी का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें. सर, जो एक्चुअली सर मैं अभी from past 5-6 months I'm continuously preparing for bank exam.
तो सर मेरा मैक्सिमम टाइम इन्हीं दो में जाता है सर। अगर मैं अपनी स्टडी से जो भी फ्री टाइम होता है मैं इन्हीं दो में इन्वेस्ट करता हूँ सर। ओके, मतलब ये आपका काइंड ऑफ फेवरेट पास टाइम जब होता है तो आप अपने उनके साथ बैठना एंजॉय करना पसंद करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। तो अच्छा चलिए कोई बात नहीं, उस पर नहीं जाते हैं। कुकिंग का आपने लिखा है कि कुकिंग आपको अच्छा लगता है। यस सर। आपके इस हॉबी का क्या यूज हो सकता है? ग्रैंड पेरेंट्स से बैठ के टाइम स्पेंड करना, कुकिंग करना, मैं बैंक में क्या यूज करूंगा मैं इसका? सर इनका बैंक में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन बैंक हमें कंटिन्यूअसली जो हमारी पोस्टिंग है वो अलग अलग जगह करता है सर। इट में बी रूरल, इट में बी अर्बन, इट में बी सेमी अर्बन सर। तो सर जब भी आप कहीं पे जाते हो तो जो एक मेन इशू स्टार्ट होता है सर वो होता है सर खाने का। हाँ। तो सर मैंने भी ये खाना बनाना सिर्फ इसलिए सीखा था सर क्योंकि मैं यहाँ से हरियाणा से अलीगढ़ गया था, खाने का इशू होता था सर काफी। पहले मेन इशू स्टार्टिंग में जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होती है सर, एडजस्ट होने के लिए जो मेन फैक्टर होता है वो सर आपकी कुकिंग ही होती है। अगर आप खाना बनाना जानते हैं तो आपके लिए एडजस्टमेंट इजी होता है। और सेकंड सर ग्रैंड पेरेंट्स से बात करने का ये बेनिफिट है कि सर जब भी हम कहीं पे भी हमारी पोस्टिंग होती है तो जो एक बैंकिंग ऑफिसर की जो पहली फॉर मी जो उसकी क्वालिटी होती है उसमें सबसे पहला यही होता है कि आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए। व्हेन यू स्पीक विद योर ओल्डर पर्सन्स, आपके बैंक में भी ओल्डर पर्सन्स की कस्टमर्स होते हैं, तो उनको इजीली हमें हैंडल करना, उनके साथ बात करना विद पेशेंस, तो सर मुझे लगता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपके पिताजी एक्स सर्विसमैन हैं, थे रहे, आपको कभी उनसे इंस्पिरेशन नहीं मिला कि आप भी डिफेंस ज्वाइन करो? Sir, at starting, yes, I have that interest, but I am only child of my parents. ओके। So they don't want me to join armed forces. ओके, ये जो मीन्स उनके प्रेशर में, अगर मान के चलिए कल आपको कहीं पोस्टिंग दे दी गई ऐसी रूरल एरिया में, मान के चलो आप हरियाणा से हो और आपको बिहार के किसी नक्सल एरिया में या जहानाबाद में दे दी गई पोस्टिंग, उस तरह का एरिया है, अब आपके मदर पेरेंट्स चाहेंगे कि नहीं मेरा बच्चा नहीं जाएगा उधर, तो आप बैंक छोड़ दो फिर? नहीं सर। क्यों? फिर तो वो प्रेशर तो उस समय भी काम करेगा ना ये। सर डिफेंस का जो उनको ओपिनियन है, अर्लियर इट वाज अ वेरी हार्ड जॉब, but now the condition changes in defense also. And about सर जो नक्सल एरिया की बात है वो सर मुझे नहीं लगता मेरे पेरेंट्स को इसमें कोई इशू होगा सर। ओके ओके। बैंकिंग एंड डिफेंस आर टू डिफरेंट सेक्टर सर। अच्छा आपको पता है कि रिसेंटली किस बैंक ने डिफेंस पर्सनल्स के सैलरी के लिए एक एमओयू साइन किया है? सर नेवी के लिए किया था सर। किसने? वो बैंक का नाम याद नहीं आ रहा सर, लेकिन नेवी के लिए किया था इतना याद है सर। ओके कोई बात नहीं। आप एक बात बताइए, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है जिंद की, आपके डिस्ट्रिक्ट की? सर एट प्रेजेंट एग्रीकल्चर है सर। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, ओके फाइन। तो एक बात और बताइए अंकित, आप चेक तो आपने देखा होगा, चेकबुक? यस सर। और चेक लीव्स भी देखा होगा, उस पे चेक लीव्स तो होते हैं, चेक के पन्ने। यस सर। तो आप ये बताइए कि चेकबुक पे और चेक लीव्स पे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है एक बैंक के बारे में? सर बैंक के बारे में बैंक का नाम, जो उन्होंने बैंक में डिटेल लिखी होती है, बैंक का नाम, और प्लस सर बैंक से रिलेटेड तो मैक्सिमम हमें यही मिलता है, और वहां पे एक अकाउंट नंबर भी होता है सर मेंशन। ओके तो अकाउंट नंबर मेंशन होता है और बैंक का नाम? यस सर। और कुछ नहीं होता है उसपे? सर उस पे नंबर होते हैं सर जो आपके ट्रांजैक्शन के लिए आप यूज करते हैं, बैंक जो चेक नंबर होता है सर।
अच्छा, ट्रांजेक्शंस के लिए यूज करते हैं वो चेक नंबर होता है, और आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, ये सब जानकारी नहीं है। बैंक का एड्रेस होता है उस पे। ये सब बैंक का एड्रेस तो है सर उस पे। चलिए एक बात बताइए कि चेक्स जो होते हैं किस एक्ट के अंतर्गत रेगुलेटेड होते हैं? सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सर। कब आया था ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? सर मे आई गेस अबाउट दैट? हाँ बोलिए। आइदर 83 और 90 सर। 83? क्या 83 और 90 मतलब 1700, 1800, 1900? 19 सर। 19? 1983 और 1990। अंकित, इट वाज 1881, ओके। और एक बात बताइए, आरबीआई का क्या क्या फंक्शंस है अंकित? सर आरबीआई हेल्प्स, जो आरबीआई है सर ये लोन प्रोवाइड करवाती है बैंक्स को। बैंक को लोन प्रोवाइड करती है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको सबमिट करती है बैंक से। प्लस ये सर जो भी इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए वर्क करती है सर। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या काम करती है बैंक? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी पॉलिसी सर। क्या मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करती है बैंक? सर मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनके पास ही सुपीरियर पावर होती है। वो जो भी बैंक रेट हैं, सीआरआर, एसएलआर, ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको सर कंट्रोल करती है। अच्छा, सीआरआर किसको कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो सर। ओके, क्या डेफिनेशन होगा इसका? कैश रिजर्व रेशियो सर वो अमाउंट होता है जो बैंक आरबीआई के पास जमा करती है सर डेली बेसिस पे। अच्छा, डेली बेसिस पे जमा करती है। यस सर। अभी क्या रेट चल रहा है सीआरआर का? सर इट्स 4%। 4%, ओके। एसएलआर क्या होता है? सर एसएलआर वो अमाउंट होता है जो बैंक अपने पास सिक्योर रखती है सर। अच्छा, तो अपने पास सिक्योर रखती है। क्या परसेंटेज है अभी? सर 18%। फुल फॉर्म बताइए इसका। तो क्या सर? फुल फॉर्म बताइए इसका एसएलआर का। लिक्विडिटी रेशियो सर। तो आप बता सकते हैं कि बैंक क्यों रखती है इसको अपने पास? सर आरबीआई ने गाइडलाइन दी हुई है, अगर बाय चांस जो बैंक है वो बैंकरप्ट हो जाए, मतलब उनका जो बिजनेस है वो ज्यादा लॉस में चला जाए, तो विद द हेल्प ऑफ दिस दे कैन रिटर्न बैक द अमाउंट डिपॉजिटेड इन देयर बैंक सर। रिटर्न बैक, रिटर्न बैक होगा कि इकोनॉमी में इन्फ्यूजन होगा इसका? सर इकोनॉमी में इन्फ्यूजन होगा सर। अच्छा, आप एसएलआर जानते हैं? कुछ हटाया आपने लगता है, क्या रखे हुए थे? एक्चुअली सर पेज है, अगर मैं कोई मिस्टेक करता हूँ तो सर ने 2-3 पॉइंट बताए थे सर वो लिखने के लिए सर। ओके फाइन, कोई नहीं। अगर एसएलआर जानते हैं तो आप एनडीटीएल भी जानते होंगे। क्या होता है एनडीटीएल? नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी सर। डिपॉजिट या डिमांड? डिमांड सर। सर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। क्या है ये, क्या होता है ये? सर जितना बैंक के पास अमाउंट सबमिट होता है और माइनस जो बैंक लोन देती है सर, तो उसका डिफरेंस होता है। यस सर। अच्छा एक बात बताइए, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, डिमांड डिपॉजिट्स क्या क्या होते हैं बैंक के पास? डिमांड डिपॉजिट सर दैट इज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट सर। और कोई? नहीं सर ये दो हैं। टाइम डिपॉजिट? टाइम डिपॉजिट में सर एफडी, आरडी। एफडी और आरडी, ठीक है, एफडी आरडी है। और एक बात बताइए कि
आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या यूज करेंगे बैंक में? सर जो करंट गवर्नमेंट है इनका मेन फोकस चल रहा है सर स्टार्टअप्स पे। हमने रिसेंटली 89th यूनिकॉर्न इंडिया में 89 यूनिकॉर्न हो चुके हैं और कंटिन्यूअसली सर स्टार्टअप पे फोकस किया जा रहा है और मैक्सिमम स्टार्टअप में हम मशीन्स का यूज कर रहे हैं। तो प्लस जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसमें भी हम नियरली 7.5% एमएसएमई को देते हैं सर। और एमएसएमई और स्टार्टअप्स मैक्सिमम मशीनरी का यूज करते हैं सर। जब हम बैंक को लोन उनको प्रोवाइड करवाना है तो एज आई हैव टेक्निकल बैकग्राउंड तो सर मेरे लिए थोड़ा इजी होता है ये जानना कि जो हमें ये बता रहे हैं इतना लोन ये इतने टाइम में इनकी प्रोडक्शन इतनी है वो रिपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो इजी रहेगा सर। प्लस एज I got training in as a PO from bank and my technical background as I studied in my undergraduate and postgraduate, they both help me in these areas, sir. आपने वर्ड बोला यूनिकॉर्न, क्या होता है ये यूनिकॉर्न? सर जब भी किसी भी स्टार्टअप के जो इवैल्यूएशन है वो 1 बिलियन या उससे ऊपर हो जाए सर। स्टार्टअप की इवैल्यूएशन 1 बिलियन, क्या 1 बिलियन रुपीस? 1 बिलियन डॉलर सर। 1 बिलियन डॉलर, तो उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। ओके, क्या वैल्यूएशन होती है, किस चीज को वैल्यू किया जाता है इसमें? सर इफ आई एम नॉट करेक्ट इट रिलेटेड टू शेयर सर। शेयर का वैल्यूएशन होता है। ओके फाइन, ओके ठीक है अंकित, आई एम डन फ्रॉम माय साइड एंड मिस्टर शशांक, आर यू देयर? Perhaps Shashank sir is not there. Okay, so I'll give you the feedback, right? Shashank sir. Hello. Yeah, please put on the video. तो ये फीडबैक टाइम है, थोड़ा सा इनको फीडबैक हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। आप अपनी तरफ से फीडबैक दे दीजिए, फिर हम कंक्लूड कर देंगे। अंकित जी देखिए, सब्जेक्ट मैटर की, हेलो यस सर, हाँ, सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज आपके पास है, इसमें देयर इज नॉट सस्पिशन डाउट अबाउट दैट। और वैसे क्वेश्चंस जो फैक्ट बेस्ड है, फैक्चुअल डाटाज, वो एक बार थोड़ा सा उसे गो थ्रू कर ले। ओके सर। और वो सबसे अच्छी बात यह है कि बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन यू हैव लिसन द क्वेश्चंस वेरी साइलेंटली। दैट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट अबाउट यू। आप अच्छी तरह से बिल्कुल पहले क्वेश्चन सवाल सुन लेते हैं, फिर आप जवाब देते हैं। तो ये एक अच्छी मतलब की एस्पेक्ट है आपके बारे में। और शुभकामनाएं आपको अगले रियल इंटरव्यू के लिए, जो कि होना है आपके, जो IBPS लेगी। यस सर। पर बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज पे लगभग आपकी मतलब जानकारी सटीक है, और कुछ फैक्चुअल डाटा ये सब रिवाइज कर ले। ओवरऑल मेरे तरफ से अच्छा रहा आपका इंटरव्यू, ऑल द बेस्ट। ओके, मैं अब कहूंगा अंकित कि आप जैसे एक दो चीजें मैंने देखी हैं कि आप इंग्लिश हिंदी में स्विच करते रहते हैं, ठीक है ना? वो स्विचिंग थोड़ा सा ना करें, ठीक है? जब भी आपको ये लगे तो परमिशन मांग के ही करें, क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सनैलिटी डिफेक्ट में जाता है, ठीक है? खुद से स्विच नहीं करना है, ठीक है? आप हिंदी में बोले परफेक्ट। देखिए, उनको किस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, हिंदी बोल पा रहे हैं ढंग से कि नहीं बोल पा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स। आप जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं वो परफेक्टली बोले, ठीक है? एक हिंदी वाला बच्चा हिंदी बोलेगा, ठीक है? और उसमें जो कॉन्फिडेंस दिखेगा ना, तो फिर वो सिलेक्शन आपका होना ही है, ठीक है? और बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहता है कि आप इंग्लिश में ही बोलो। हाँ, जब उन्होंने इंटेंशनली पूछा है तो आप उस समय में ध्यान रखें कि वो इंग्लिश में ही इसका आंसर करें। अगर उन्होंने पूछा है इंग्लिश में, फिर भी अगर वो आपको लगता है कि आप हिंदी में ज्यादा बेटर बोल सकते हैं, तो आप जरूर उसको परमिशन ले लें। और उस समय जब आप परमिशन ले हिंदी वाली, तो उसमें इंग्लिश ना घुसाएं, समझे? कभी नहीं, फिर उसको हिंदी में पूरा कंप्लीट कर दे। जैसे आपने बोला कि मैं हिंदी में बोलूं सर, फिर आपने 2-3 सेंटेंस हिंदी में बोला, उसके बाद फिर इंग्लिश आपने डाल दिया उसमें,
तो वो नहीं करे, वो हिंदी में चले जाए पूरी तरह से, ठीक है ना। तो वैसे भी टेक्निकल टर्म्स तो कोई हिंदी में बोलने वाला नहीं, पैनलिस्ट भी नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो आप जितना परफेक्टली आपने, मैंने देखा कि आप में हिंदी में काफी आपका आवाज भी लाउड रहता है, प्रॉपर रहता है, और काफी कॉन्फिडेंट भी आप रहते हैं। ये चीज को बनाए रखिएगा, ठीक है। लैंग्वेज स्विच मत कीजिएगा। कुकिंग के बारे में आपने बोला, बोलिएगा उसमें कि इंग्रेडिएंट्स जो यूज होता है, कुकिंग जो भी लोग कुकिंग जानते हैं, आपने कहा कि कुकिंग करेंगे तो हमको कहीं भी भेज देगा मेरे को, तो मेरे को आराम हो जाएगा, मैं बना लूंगा, मेरे को उस चीज को तो एक पार्ट है ही। दूसरा पार्ट ये रखिए कि कुकिंग में जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो बहुत फोकस्ड होके मुझे डालना पड़ता है, और एक कुक करने वाले को बहुत उसका टाइमली इवैल्यूएशन करना पड़ता है कि कितनी देर में पकाऊंगा तो ये पक जाएगा, ये जलेगा नहीं। तो मुझे भी कुछ भी अगर ऐसा डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम आया, इशू आया, तो मैं टाइमली उसको असेस करके डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं। कुकिंग से मैंने ये सीखा है। मुझे कहां पर इंग्रेडिएंट्स की बात करें सर, तो कहां पर कितना कैसे क्या बोलना है, कहां पर कितना कैसे क्या एक्ट करना है, क्योंकि मेरा पब्लिक डीलिंग का काम रहेगा सर। हर एक व्यक्ति तो एक जैसा रहेगा नहीं, हर एक व्यक्ति एक तरह से इंग्रेडिएंट की तरह रहा। मेरे को किस आदमी का कितना यूज करना है, मेरे को किस आदमी से कितना बोलना है, ये मैंने उस चीज से सीखा है। तो मुझे तो आइडिया रहेगा उस समय कि मुझे किसको कैसे डील करना है, तो मैं डील कर सकता हूं। एक भोजन बनाने में 10 तरह की नमक है, मसाला है, मिर्च है। एक सब्जी बनाने में 10 तरह की चीजें लगती हैं, अलग अलग तरह के मसाले लगते हैं, उससे स्वाद का पता चलता है। अगर मैंने ज्यादा नमक डाल दिया तो खराब हो जाएगा। तो मुझे पता है कि मुझे इस तरह से मैं वेरियस काइंड ऑफ पर्सन्स इन द सोसाइटी, अगर उनको इंग्रेडिएंट मान लें तो उनको यूज करने का तरीका मुझे पता होगा, जो कि बैंक के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। ऐसे वो इसको कर ले, ठीक है। क्या आप ज्यादा सेटिस्फाइड हैं कि नहीं इस आंसर से? सर कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूं सर। ओके, चलिए तो ये कर ले, थोड़ा सा अपना इंजीनियरिंग वाला है ना ब्रश अप कर ले थोड़ा सा बस, ठीक है। क्योंकि मास्टर्स डिग्री है आपको, आप डिप्लोमा वाले को पढ़ा भी रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आपको ट्रिक करने की कोशिश करेंगे वहां पे। ऑल्दो यू हैव गुड नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। अभी अदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे का मैंने लिया है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, वो बच्चे सब जिन्होंने आपसे आपके रिसेंटली किया है, आपने ग्रेजुएशन कब किया था? सर 14 में सर। हाँ बताइए, देखिए लेकिन वो 2020-21 के बच्चे हैं, वो नहीं जवाब दे पा रहे थे, ठीक है। तो आपका मैकेनिकल पे भी आपने जवाब दिया है, ठीक है। आप उस पे 0 नहीं थे और बहुत सही रहा आपका। आई क्वालिफाइड गेट 2 टाइम्स सर। ओके, तो I prepared for engineering services also. That's why sir. देखिए आप उसमें उस चीज में ना मत जाइएगा, हमको मुझे जहां तक लगता है, क्या शशांक सर, Yes sir. मैंने कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज कर रहे हैं या यूपीएससी कर रहे हैं, उसको एक बात आपने मुझे बता दी, लेकिन मुझे लगता है शशांक सर भी यही कहेंगे कि वहां ये सब मेंशन करना ठीक नहीं रहेगा, कि थोड़ा सा एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा ये, मतलब फिर वो यही बोलेंगे फिर आप यहाँ पर जाकर के बैंक का रिसोर्सेस और अपना टाइम वेस्ट न करें, आप उसी पर ध्यान लगाएं। यस सर। हाँ, इसको कभी मेंशन इंट्रोडक्शन में गेट का भी जिक्र नहीं किया था कि मैंने 2 टाइम गेट क्वालिफाई किया हुआ है। कुछ नहीं, आप हैं क्वालिफाई किया तो उधर क्यों नहीं गए, इधर क्यों आ रहे? वो बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा करेगा आप पे, ठीक है ना। तो आप अपने को क्रिस्प रखें, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में हॉबीज बताएं, अपना करंट सिचुएशन बताएं कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट मेंशन किया है फॉर्म में। यस सर। हाँ, तो बताएं कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, ठीक है ना। I worked in this कंपनी, और मैंने इतना काम किया था, फ्रीलांसिंग का काम, अभी मैं ट्यूशंस का काम कर रहा हूँ और मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ अपने लाइवलीहुड के लिए। आई एम मैरिड, दैट इज व्हाई आई हैव रिस्पांसिबिलिटी, ओके, टू हैंडल माय फैमिली, फाइनेंशियली सपोर्ट माय फैमिली। तो मैं ट्यूशंस कर रहा हूँ सर। पूछेंगे जॉब क्यों नहीं लिया, तो आप बोल देना कि सर लॉकडाउन के कारण मुझे बहुत जगह मैंने अप्लाई किया था, बट मुझे नहीं मिला जॉब, साथ ही साथ मैं तैयारी कर रहा था सर, तो कोर में मुझे मिल नहीं पा रहा था, तो मैंने ये किया। और इसमें मुझे और एक तरह से थोड़ा सा बैंक की पढ़ाई कीजिएगा कि मैंने पिछले कुछ सालों से देखा है कि इतनी बुरी कंडीशन में भी बैंक इतना चैरिटेबल वर्क कर रहा है, काइंड ऑफ, मतलब एक तरह की चैरिटी ही है कि हजार के आसपास सीट निकाल रहा है बैंक और ले रहा है ऑफिसर्स को। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी विभाग इस तरह का रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं ला रहा है। तो हम लोग के लिए तो सर मैं तो मानूंगा कि
क्योंकि इस पे वो सवाल करेंगे कि हो सकता है आप छोड़ के चले जाएं, आप तो हायर डिग्री वाले हैं, तो ये सब जरूर बोलिएगा। और आपने सब्सक्राइब किया है चैनल मेरा वाला? यस सर। तो आप उसमें थोड़ा सा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और इंजीनियरिंग के बाद आपको क्यों लें और इंजीनियरिंग का क्या यूज है, वो एक बार जरा देख लीजिएगा वीडियो मेरा, ठीक है ना? यस सर। कोशिश कीजिएगा कि वहां से देख के आपको कंपाइलेशन अच्छा मिल सकता है। हाँ सर, मैंने वो अभी कुछ देर पहले देखा था। ओके। मैं उसको मतलब कंप्लीटली अपना आंसर नहीं बना पा रहा था सर, तो इसलिए नहीं, मैं वो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, आप अभी जितने भी दिन बचे उस पर कंपाइल कर लीजिए उस चीज को, ठीक है ना? ओके सर। कि आप अपना आंसर मिला लीजिए, और वो क्योंकि कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे पूछे ही जाते हैं, उसमें इफ नो बट कुछ भी नहीं आएगा, वो पूछेगा ही पूछेगा, है ना? तो ये सब कर ले। बाकी आपका जो पेशेंस लेवल है बहुत अच्छा है, आप बहुत नर्वसनेस का इशू नहीं है आपके साथ, और सबसे बड़ी बात है कि हल्का कभी कभी दिखता है, बट चलिए ओके फाइन। आप क्लीन शेव होके जाएंगे या ऐसे ही रखेंगे बियर्ड? नहीं सर, बियर्ड ट्रिम करके जाऊंगा सर। ट्रिम करके सर, जाएंगे। मैं 3 दिन से तबीयत खराब चल रही है, तो मैं बाहर निकला भी नहीं हूँ। ओके, मैं कोई इंटरव्यू भी बेड पे ही दे रहा हूँ सर मैं अभी भी। अच्छा, कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट आपको, बहुत विश यू कि आपका हेल्थ बहुत बेटर हो जाए आगे चल के, और मैं यही विश करूंगा, आई होप कि आपका जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाए। तो हम लोग बस यही है, बाद बाकी चीजें आप फिनेंशियल टर्म्स जो है उसको ब्रश अप कर ले थोड़ा, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। जो भी मैंने वो पीडीएफ दिया है उसी को आप एक बार देख लें। सिक्योरिटी मार्केट का है, इंडस्ट्री इंश्योरेंस का है, बैंकिंग का है, मैंने करीब एक कर्सरी व्यू के लिए उसको दे दिया है, आप एक बार उसको देख ले। और इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस पे तो चीजें तो हो ही गई हैं। मैं उसको कर रहा हूँ सर। हाँ, उसको देख लीजिए। बट इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ ना रोज दिन, उसको जरूर कर लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि आज भी मैंने आपको नौकरी में क्यों लिया जाए, आपके स्ट्रेंथ से रिलेटेड मैटर्स को मैंने एक वीडियो डाली है, उसको भी जरूर देखिएगा। आपको बहुत सारा उसमें से मैटर निकल के आएगा, ठीक है ना? तो चलिए ठीक है अंकित जी, आपसे इस बार नाइस टॉकिंग टू यू। बस एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग लास्ट में क्या करते हैं कि लड़के से फीडबैक लेते हैं, कैंडिडेट से, कि पैनल को फीडबैक आप दे दीजिए, जैसे हमने आपको दिया कि आपको कैसा लगा, ये कंप्लीट था कि नहीं था, पैनल में जो लोग थे उनका सब सपोर्टिव रहे कि नहीं, या इस तरह का जो आपके दिमाग में ऐसा आता है, तो एक थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए। ओके सर, ग्रुप में या यहीं पे? नहीं, ग्रुप में भी आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे फीडबैक रहेगा, और ये चीज रिकॉर्ड भी रहेगी। आपको जो सही लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको मेरे को क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए एज अ पैनलिस्ट या एज अ पैनल, या आपको लगा कि नहीं सब कुछ ठीक रहा सर, मैंने एक्सपेक्ट किया था जो उस तरह से हुआ, तो आप उस तरह की फीडबैक एक दे दें यहाँ पे। ग्रुप में जो आपको लिखना होगा आप लिख सकते हैं। सर एक्चुअली ये मेरा पहला ही मॉक इंटरव्यू था, तो मेरा उसके कंपैरिजन में जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मेरे को अपनी काफी जो गैप है अपने आंसर्स में, या अपने जो मेरे को लग रहा था कि हाँ मेरे को ये चीजें आती हैं, तो सर वो मुझे आपसे गैप पता चला है, जो मैं खुद ये समझता हूँ कि मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा वो आगे के लिए सर। ठीक है, ओके। और सर जो क्वेश्चंस लेवल थे, जो मैंने प्रीवियस अभी तक जितने भी क्वेश्चंस के देखे हैं वीडियोस, उनसे ज्यादा बेटर था सर ये। ओके, आई होप कि सर ये चीज मेरे को लग भी रहा है कि ये चीज मेरे को काफी हेल्प करेगी आगे। ओके, चलिए। अपने के साथ इंटरेक्शन हुआ है, उससे सर मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला है, अपने गैप का पता चला है, जिसको मैं अगर मैं कंप्लीट करता हूं तो मैं होप करता हूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये कह रहा था कि अंकित की सेकंड इंटरव्यू में मिलते हैं हम लोग, ठीक है ना? दूसरा भी इंटरव्यू आपका होगा, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।